Good evening, team. Myself, Manigata Mudalia from Commodity and Currency Desk. Today, we are going to talk about advanced currency option strategies, in which we have Mr. Hitesh Setia sir from NSC. So we'll try to understand the concept about the currency trading. What are the strategy we can able to use in market live? Just like currency derivatives, exploring advanced option strategies, currency option trading. Let me hand over the call to Mr. Hitesh sir from NSC. Sir, just take over the, yeah. Thank you so much, sir. And on behalf of National Stock Exchange and IIFL, I welcome everyone who has joined us today, either through the Zoom mode or through the live mode on the social media channels. Yes, something which is very interesting, what we have seen in recent past, which is a lot of movement in currency derivative market, has attracted a lot of participants. Before I move on to the topic, which is advanced option strategies, doable strategies, and how to execute those strategies, let me ask a question to the moderators, sir. In which language you would like to keep this session? English, Hindi, or a mix of it, sir? It's a combination, sir. Combination. Thank you. Combination of both, yeah. Yes. All right. So, my dear friends, do remember markets. Okay. And I'm not limiting my conversation for this sentence for equities or just for currencies, what is today's today's topic of discussion. But markets are so super placed, right, that it is capable of telling you what is expected to happen and what is the probable direction. But for that, you have to learn markets really well. So what I'm trying to say is, yes, the word experience, right, is what I'm trying to define. That slowly and gradually, when every day, when you come see the IIFL screen every day per se, right, slowly and gradually, you also start learning with the markets. Every day is a new day. Every day, a new learning happens through markets. So keep learning, because ultimate success in market is all about continuous learning. So be a continuous learner. And also, what we are going to discuss today, right, is basically one part. Okay. The other part of the world is a live screen. Okay. And even personally, I think that the best teacher is a live screen. Right? So whatever you are going to understand with me, whatever concepts I'm going to explain it to you, try and apply it in the markets. Even with smaller quantity, follow stop loss, follow risk management, right? Okay, but apply it in the market, because the learning or the application side of option strategies, that itself is a self-learning model, right? So one part is the discussion, what we are going to do today. I'm trying to include as much practical, as much doable strategies which are possible. I'll include it, but my request is you should also go and apply it in the markets. And I will try to give you a different touch to the option strategies. Though there are more than 122, 23 strategies in options, right? Because the word option itself says, option ka khud ka matlab hi hota hai, I have many options. From in the money to at the money to out of money to deep out of money to deep in the money, with futures, not with futures, with call, with put, combination of call and put, with one expiry, with different expiry. So option is basically full of options. Option is basically full of options. That's why you can make n number of permutation combinations with this. Okay. And second best part about today's discussion is it is completely focused on currency derivative, a product which is really close to me, a product which got started in 2008, but has attracted everyone's eyeballs towards it. It is so good, so gorgeous, so good and so gorgeous. Okay. A product which can even be used for learning. So even if you are a new investor, you have no exposure towards derivative markets, right? I think currency derivative is one of the best product
what you can use it. Okay, and within that we will discuss about advanced option strategies per se, particularly. Okay. Okay, so let me move on step by step. For few seconds, let me keep this slide, which is the disclaimer. I request all of you to read this. As per guidelines, detailed disclaimer has to be there in the presentation, which is now in front of you. Let me move on. Yes, this is something very, very new, got announced today itself. So I'm really happy to share. A proud moment for everyone. And everyone, when I say, is everyone who is part of Indian capital markets, directly or indirectly. Directly means direct investments. Indirect means an investment through a medium. Okay, a proud moment for Indian capital markets, and yes, by NSE for NSE, and that is what the NSE becomes the world's largest derivatives exchange in terms of contracts traded for calendar year 2021. Okay, NSE becomes the world's largest derivatives exchange in terms of contracts traded for calendar year 2021. This has just got announced today, right? And this is third year consecutively that NSE, right, is now the world's largest exchange, right? From last continuously 3 years, right? First time we have seen, right, the number of contracts being traded. You can think about the kind of liquidity which is available in the markets. Okay, so that makes markets so good and so gorgeous as well. Let me move on. That why currency derivatives. All the simple slides. I will not devote much of time on it, but we'll try to give you some brief about it. Do you know the world's largest tradable asset is currencies, is FX basically. Largest financial market in the world basically. It has an average daily turnover value, ADTV, globally is $5.5 trillion. First time the futures got introduced, the first time FX futures, the currency futures were introduced in 1972 at Chicago Mercantile Exchange. And after that, we have learned that yes, a Forex product, a currency product can also be considered as an asset class. ऐसा बोलते हैं गोल्ड और करेंसी तब मदद करेगा जब कोई और चीज मदद नहीं करेगी. गोल्ड और करेंसी, राइट, तब मदद करेगा जब और कोई चीज मदद नहीं करेगी. सो अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ FX as a diversification of your portfolio. FX is now an asset class. After the introduction of currency futures in 2008, it is now for retail investors being considered as an asset class. Right? The major trading centers across globe are London, New York, Tokyo, and Singapore. And yes, slowly and gradually, India, Mumbai, I will say, is also being included in this list. This is just for quick reference purpose. I will not go much deep into it because this is more for people who are into imports and exports. So even this platform, right, which is used by financial investor for diversifying their portfolio, this platform is also being used by people having foreign exposure, which are importers and exporters. So far what people used to do, right, before the introduction of currency derivatives, which are exchange traded products, it was used. So importers and exporters used to go to banks. Banks used to, they used to hedge with the banks. But now, right, they have an online electronic platform, right, which is exchange traded currency futures and exchange traded currency options, which are much more standardized, with smaller contract size, with weekly options, weekly instruments, I would say, also being available with a clear purpose, right? Whether you are an importer, exporter, or a financial hedger, you can even use it, right? No need of doing documentation as an importer, as an exporter. When you used to go to bank for hedging purpose, you used to always give documents and all, right? No, this is one-time documentation, which is KYC, which happens, right? And after that, things are so smooth. So you can contact IIFL desk. My request is, in case, right, if you are exposed to us foreign exchange markets,
If you are heading so far with the banks, my request is contact IIFL desk, right? Enable your currency segment. You just need to tell that enable my currency segment. I'm sure, right? Most of you might have already enabled it or might be using it, but you can just tell them that please enable it, and sorry, and you can simply use platform for importers hedging, exporters hedging, or for anything which is related to FX market per se. Okay, just one-time documentation. The extension of limits is very possible, very much possible. The transaction cost is too low, and it's fair market. Fair, it is everyone. It is for everyone. So if you are sitting in Kolkata, if you're sitting in Mumbai, whether you are a small importer, small exporter, okay, probably a bank might not be giving you a right quotes, right, in terms of best quotes, best quote, right? Okay, what you can do out here is you can get the access of real-time exchange traded currency futures, right, which is available on NSE's platform from IIFL, and start using it for importers and exporters perspective. You may just read, these are, you know, few of the difference between OTC forward, which is, you know, importers and exporters and bank, they create a market which is in the world of derivatives, it is called as OTC forwards, and other way are exchange traded currency futures. That's it, not much time on it. I want to be more, right? Okay. Not much required even on this slide. There's nothing but 7 currency pairs which are available, 3 INR pairs and 3 cross currency pairs which are being available. The market timings are being defined, settlement criteria, so on and so forth. That is for futures. But and same is available for options. You may just have a look to it. USD, INR, Euro. Again, 7 currency pairs. Options are available. Timings are being defined out this, and so on and so forth. Okay. So weekly, monthly, everything is being available. I should not be, you know, I really don't want to devote much time, because I'm sure that you are quite familiar with the product. You might have heard product presentation probably of my colleague or by IIFL, but I'm sure you are quite clear with this. Okay, so smaller contract size is the ultimate key for the entire segment, which is called as current exchange traded currency segment. Now, this is something very, very special for everyone, and this is just an indicative structure I have put in. ये बताने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप करेंसी ऑप्शंस में ट्रेड करते हो और जब आप करेंसी फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, करेंसी ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, और जब आप करेंसी फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, तो क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है? आई एम श्योर आप सभी को पता ही होगा, जब आप फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं तो उसकी पूरी वैल्यू पर आपको जो सारे खर्चे होते हैं, जो सारे स्टेट्यूटरी एक्सपेंसेस होते हैं और ब्रोकरेज जो होती है, वो सब उसकी वैल्यू पर लगते हैं जब आप फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं। और ऑप्शंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, विच इज ब्रोकरेज, ओके, विच इज ब्रोकरेज, ओके, वो आपको नंबर ऑफ लॉट्स बीइंग ट्रेडेड डिस्प्ले करता है। ओके, सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, I have put in this. Let me explain it to you so that you should be able to understand the difference of kharchas, difference of expenses between currency options and currency futures. So I have taken an example first of currency options. 75 is my strike price. Suppose I am doing a round trip transaction, क्योंकि मुझे पूरा ट्रांजैक्शन समझाना है कि आपने बाय भी किया और आपने सेल भी किया। ओके, तो मैंने 1 रुपए पे बाय किया, मान लीजिए 1 रुपए पे सेल किया, जस्ट टू एक्सप्लेन यू, राइट? ओके, माय मल्टीप्लायर, बिकॉज 1000 का मल्टीप्लायर है, आई एम यूजिंग दिस फॉर यूएसडी आईएनआर। ओके, 1000 का मल्टीप्लायर है, एंड सपोज आई हैव ट्रेडेड फॉर 100 लॉट्स, आई हैव ट्रेडेड फॉर 100 लॉट्स, राइट? ओके, माय टोटल टर्नओवर comes out here, right? Premium based turnover. Okay, my stamp duty being applicable is this much, exchange TO fees is this much, GST on TO charges are this much, SEBI charges, and my total expense which are statutory expenses for 100 lots is just 82 rupees, 83 rupees, I will say 83 rupees, right? If I trade 100 lots. Okay, but yes, because you're using a broker's platform, right? You're using IIFL's platform to trade. Okay, you have to give brokerage. You have to give
brokerage. So I've just considered that if your brokerage on 100 lots for a round trip transaction is 2,000, just an example, just 2,000, right? Okay, and GST, this is just an indicative brokerage. Okay, 360 is the GST. My total expense for 100 lots is 2442.80, 2,443 rupees for 100 lots of USDNR round trip transaction in options. Okay, 2,443 rupees are my expenses. Okay, in counter to that, if you are trading with currency futures, okay, again an indicative thing has been taken up, and you may see this, the currency futures, right? The grand total comes to 3,740. Now just give a thought to it. I'm not against futures. I'm just telling you the importance of options per se. That if you're every day trading 1,000 lots in currency option is not at all a big deal, right? Because the lot size is so thin, right? Okay, and you're not using currency options. If you're using currency futures, if you're trading currency futures, right, every day 1,000 lots, okay, practically you are losing 1,200 rupees when you're trading currency futures. You're losing 1,200 rupees on 100 lots. Losing, why I'm using a word? Because when you pay more, right, your profits decreases, right? Which is like you're losing more profits basically. Okay, and if you're doing it for all 252, 255 days, har din aap karte ho 1,000 lots. Now think about 1,200 rupees on 100 lots. For 1,000 lots, 12,000 rupiah per day, or 12,000 rupiah per day multiplied with 252, I think is a huge amount which can't be ignored. So वही चीज जो आप फ्यूचर्स में कर रहे हो, आप ऑप्शंस में कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इफेक्टिवली कर सकते हैं, और दैट विल हेल्प यू टू सेव अ लॉट ऑफ मनी. करेंसी फ्यूचर्स के बजाय आप करेंसी ऑप्शंस कर सकते हो. दिस इज मच 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 मोर इफेक्टिव. ओके, बट कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे. ओके, सो कुछ चीजें ऑप्शंस के बारे में पहले मैं आपको बताता हूं. राइट, नंबर 1, options are less risky from holder perspective. Holder is the option buyer जिसको हम बोलते हैं. ऑप्शन याद रखिएगा कम रिस्की रहते हैं, लेस एक्सपेंसिव. ये पिछला स्लाइड में मैंने आपको बताया, खर्चा भी कम लगता है उसको ट्रेड करने का. राइट, इसमें लीवरेज बहुत अच्छे से होता है बिकॉज आपको सिर्फ प्रीमियम अमाउंट देना है. राइट, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो सिर्फ प्रीमियम अमाउंट देकर भी आप ट्रेड कर सकते हैं. आई बिलीव आप सभी को पता होगा. बट जब आप ऑप्शन बेच के काम करते हैं तो आपको मार्जिन्स लगता है. दीज मार्जिन्स आर यूजुअली इक्वल टू फ्यूचर्स मार्जिन. बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं. और सबसे अच्छी बात, जब आप ऑप्शन बाय करके चलते हो ना, राइट, आपका डाउन साइड लिमिटेड है. प्रैक्टिकली डाउन साइड इज लिमिटेड, और इसीलिए आपके ऊपर मार्क टू मार्केट नहीं लगता है. सो ऑप्शन होल्डर जो है, होल्डर मतलब जिस बायर जिसको हम बोलते हैं, उसको कोई चिंता की बात भी नहीं है. क्यों? क्योंकि उसको मार्क टू मार्केट भी नहीं देना. यू हैव वैरायटी ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस. इतनी सारी स्ट्राइक प्राइसेस है, आप कोई भी ट्रेड कर सकते हैं. और ऑप्शंस के साथ में ना आप फ्लोर और सीलिंग भी बना सकते हैं कि नीचे में इतना और ऊपर में उतना. फ्यूचर्स के साथ आप कभी नहीं बना सकते. राइट, मैं अभी कुछ बोल नहीं रहा हूं, बट बोल नहीं रहा हूं इन द सेंस में ऑप्शन स्ट्रेटेजीज पे नहीं आया हूं. बट यस, ऑप्शन स्ट्रेटेजीज के साथ ऑप्शन इतना अच्छा कंसेप्ट है कि आप ऑप्शन स्ट्रेटेजीज में फ्लोर और सीलिंग फ्लोर और सीलिंग बना सकते हैं. पर जो सबसे खास बात है ऑप्शंस की, एंड दैट इज बीइंग रिटन एज लास्ट पॉइंट, कि जब आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हो, गुड, इट इज गुड, नो डाउट अबाउट इट. हर चीज का उपयोग एक पर्टिकुलर जगह पे होता है. So everything has to be used at a certain place, certain times, based on certain volatility. Future is also good, but आपको पता होना चाहिए कब मुझे futures यूज करना है और कब मुझे options यूज करना है. But futures क्या अलाउ करता है आपको? Futures सिर्फ आपको डायरेक्शनल प्रॉफिट दे सकता है. फ्यूचर्स जो है, डायरेक्शनल प्रॉफिट मतलब क्या? या तो भाव ऊपर जा रहा है, राइट, लेट्स से USDNR seems bullish, you buy a futures, make money. अगर आपको लग रहा है भाव नीचे जाने वाला है, राइट, okay, so what you do basically is आप future short कर देते हैं. when the USD INR exchange rate goes down, you make money. Exchange rate, okay.
राइट? सो जब भी करेंसी डेरिवेटिव डायरेक्शनल होंगे तो फ्यूचर्स वर्क्स गुड, बट ऑप्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर डायरेक्शन आपको नहीं समझ में आ रही, ना तो आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगा, नहीं आपको लग रहा है कि नीचे जाएगा, राइट? फिर आपको कुछ भी लग सकता है. सो यू कैन analyze, do it like anything. What I'm trying to say is, ना आपको बहुत ज्यादा बुलिश सेंटिमेंट्स लग रहे हैं, ना आपको बेरिश सेंटिमेंट्स लग रहे हैं. Still option can be used and so effectively that it is capable of giving you quite a handsome return on investments, right? So that is being put up. Futures allows to make profit when it is directional, but options can help you to accumulate profits. Option जो है that can help to accumulate profit or reduce the cost when the underlying is non-directional as an option, right? Okay, so option बेच के, right, रिस्क समझिए पहले फिर बेचिए, ठीक है? सो ऑप्शन जब आप शॉर्ट करते हैं, बेचते हैं, तो इट कैन इवन हेल्प यू when there are no movements in the markets, ठीक है, राइट? बट इसका मतलब ये नहीं है कि कल से आपको जाना है you have to sell options. नहीं, हर चीज एक जगह पे जब होगी तो ही उसका सक्सेस आपको मिलेगा. हर चीज जब एक पर्टिकुलर प्लेस पे होगी, जगह पे होगी, तो ही उसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा. सो आइए कुछ चीजें समझ लेते हैं. सो सबसे पहले you can, one second please, one second. Replacing futures with options effectively. अब मैं आपको बताता हूं एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे. अब हम धीरे धीरे ऑप्शन स्ट्रेटेजीज की तरफ बढ़ रहे हैं. आप फ्यूचर्स को छोड़ के ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, और ऑप्शंस में आप बिल्कुल वैसा ही ऑप्शंस को यूज करके फ्यूचर्स बना सकते हैं. मैं रिपीट करता हूं, आप ऑप्शंस को यूज करके आप फ्यूचर्स बना सकते हैं, ठीक है? अब इसको क्या बोला जाता है? इसको हम लोग बोलते हैं रिप्लेसिंग फ्यूचर्स ट्रेडिंग विद ऑप्शंस. अब है क्या? तो जब भी आप, जैसे आपको मान लीजिए IIFL बोलता है, राइट, कि बाय USD INR फ्यूचर्स, राइट, एट दिस प्राइस, ठीक है? आप क्या करिए, मान लीजिए 75 का रेट चल रहा है, मेरे को पता है 75 नहीं है अभी, बट इट बिकम्स इजी फॉर मी टू कम्युनिकेट ऑन दिस. सो 75 का एक्सचेंज रेट चल रहा है, और IIFL रिसर्च ने आपको बोला है कि आप USD INR एक्सचेंज रेट बाय कर सकते हैं. तो आपको क्या करना है? आपको बिल्कुल नजदीक का, बिल्कुल पास का कॉल ऑप्शन खरीदना है, और उसी स्ट्राइक का पुट ऑप्शन बेच देना है. कॉल बाय करना है और पुट बेच देना है. कॉल खरीदना है और पुट बेच देना है. जब आप सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल खरीद के पुट बेचते हैं, तो प्रैक्टिकली आपकी फ्यूचर पोजीशन बन जाती है. मतलब इसमें बिल्कुल वैसे ही मूवमेंट जाएंगे जैसे आपके फ्यूचर्स में. सो इंस्टीड ऑफ डूइंग फ्यूचर्स आप क्या कर सकते हैं? कॉल खरीदिए और पुट बेच दीजिए, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल वर्ल्ड में, बुक की लैंग्वेज में जिसको हम बोलते हैं, इसको सिंथेटिक फ्यूचर्स बोलते हैं. सो हाउ यू कैन कंस्ट्रक्ट अ सिंथेटिक फ्यूचर्स? बहुत ही सिंपल है. कॉल खरीदिए, पुट बेच दीजिए. मैं रिपीट करता हूं, कॉल खरीदिए और पुट बेच दीजिए. ये आपका लॉन्ग फ्यूचर बन जाएगा, और ये बिल्कुल वैसे ही चलेगा. अगर फ्यूचर का भाव बढ़ेगा तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट्स आते हुए दिखेंगे. अगर फ्यूचर का भाव नीचे आएगा तो इसकी वैल्यू भी नीचे आती है. वैसे ही आप चाहें तो शॉर्ट फ्यूचर्स भी बना सकते हैं. शॉर्ट फ्यूचर्स कैसे बना सकते हैं? बहुत सिंपल है ये भी. शॉर्ट फ्यूचर्स मतलब आपको लग रहा है एक्सचेंज रेट जो है 75 का 74 हो जाएगा, तो आप क्या करते हैं? फ्यूचर शॉर्ट करते हैं. मैं बताऊं, रुक जाइए, बात करिए. आप क्या कर सकते हैं? आप 75 का रेट चल रहा है, बिल्कुल नजदीक का पुट खरीदिए 75 का, और उसका कॉल शॉर्ट कर दीजिए. पुट खरीदिए और कॉल शॉर्ट कर दीजिए. जब भी आप ऐसा करेंगे तो इसका पोजीशन जो है, राइट, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में भी बताऊंगा पे ऑफ डायग्राम के साथ में, बिल्कुल शॉर्ट फ्यूचर्स की तरह काम करेगा, बिल्कुल वैसे करेगा. एंड इसके लास्ट के 2 पॉइंट्स मैं आपको जो थोड़ी देर में बताऊंगा, राइट, विल बी I'm going to explain you after the next slide process. तो पहले मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाता हूँ. देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताया. जब आप एक कॉल खरीदते हैं, राइट, तो आपका पे ऑफ कुछ इस तरीके से रहता है, और जब आप पुट शॉर्ट करते हैं तो आपका पे ऑफ ऐसा रहता है.
सो कॉल खरीद के पुट शॉर्ट अगर आप करते हैं, कॉल भी खरीदा और पुट भी शॉर्ट कर दिया, तो ये आपका बिल्कुल फ्यूचर्स का पे ऑफ बन जाता है, बिल्कुल वैसे ही फ्यूचर्स का। कॉल खरीदा, पुट बेच दिया। सेकंड, जो हमने शॉर्ट समझा था, मान लीजिए आपको शॉर्ट करना है, एक काम करिए, क्या करना है, पुट खरीदा, देखिए लॉन्ग पुट कुछ इस तरीके से दिखता है, राइट, और शॉर्ट कॉल कुछ इस तरीके से दिखता है, राइट, दोनों कर लिए साथ में, राइट, वी डिड बोथ द थिंग्स, राइट, व्हाट इज माय आउटकम, माय आउटकम इज अ शॉर्ट फ्यूचर्स। अगर प्राइस नीचे जाएगा 75, 74, 73 तरफ, राइट, सो यू विल हैव profits through this position. So practically आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग छोड़ सकते हो, राइट, करेंगे, गुड, नो डाउट अबाउट इट, बट ऑप्शंस और इफेक्टिवली कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है यार मैं फ्यूचर्स को नहीं करके यहाँ पे ऑप्शंस में करूं, सिंथेटिक ऑप्शंस करूं, इसका एडवांटेज क्या है, मैं इसका एडवांटेज क्या है, तो मैं इसमें आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, सो दैट आपको एक बहुत अच्छा टूल हाथ में लग जाए। प्लीज अंडरस्टैंड। देखिए मैं लॉन्ग फ्यूचर्स की बात करूं, मान लीजिए फ्यूचर्स, बहुत ध्यान से समझिएगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी विथ नंबर्स, ओके। मान लीजिए IIFL आपको बोलता है कि USD-INR exchange rate is expected to move in the upward direction, right, so buy at 75, current price 75, buy, right। आपने वो नहीं किया, आपने क्या किया, कॉल खरीदा 75 का और पुट बेच दिया, राइट। मगर अब क्वेश्चन है मैं ऐसा क्यों करूं और कब करूं, व्हेन आई शुड डू इट, एंड व्हेन आई एम डूइंग इट, व्हाई आई एम डूइंग इट, दैट इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। ये करना कब है, दैट इज द की टू सक्सेस। करना कब है मैं आपको बताता हूं। सो मान लीजिए 75 रुपीज का कॉल जो था, ठीक है, उसका प्रीमियम था 40 पैसे का, 40 पैसे का, पर जो पुट था, ठीक है, पुट था वो 43 पैसा था, 42 पैसा, 43 पैसा ज्यादा था कॉल की प्रीमियम से, कॉल की प्रीमियम से पुट ज्यादा था। पुट का प्रीमियम ज्यादा है, कॉल का प्रीमियम कम है, तो पता है, मैं एग्जांपल लेता हूं, आपने 40 पैसे में कॉल खरीदा और 43 पैसे में पुट बेच दिया, तो हुआ क्या, 40 पैसे में आपने कॉल खरीदा, 40 पैसा आपके पास से गया, बट आया कितना, 43 पैसा। ये जो 3 पैसा है ना, 3 पैसा, राइट, ये आपके प्रॉफिट्स को हमेशा इंक्रीज करेगा। दिस बेसिकली एक्ट एज एन एक्स्ट्रा माइल टू यू, एक्स्ट्रा लीवरेज टू यू, राइट। मैं आपको कारण बताता हूं। 75 रुपीज में आप सिंपल सा ऐसा समझना, मैंने 75 में फ्यूचर खरीदा, राइट, ओके, और एक्सपायरी डेट तक फ्यूचर का भाव 75 रहा, सो नो प्रॉफिट नो लॉस। बट 75 पर मैंने कॉल खरीदा और पुट बेच दिया, 40 पैसे में कॉल खरीदा और 43 पैसे में पुट बेच दिया, और एक्सपायरी डेट पर ये वाले एग्जांपल में भी 75 ही भाव रहा, तो भी 3 पैसा मेरे को प्रॉफिट आएगा, क्योंकि कॉल जीरो हो जाएगा, कॉल से 40 पैसे का नुकसान है, बट पुट जो मैंने 43 पैसे में बेचा है ना, वो 40 पैसे के लॉस को ऑफसेट भी करेगा और 3 पैसा एक्स्ट्रा देके भी जाएगा, एंड दिस 3 पैसा विल कवर ऑल माय कॉस्ट, ऑल माय एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। तो समझने वाली बात है कि अगर ये देखिए करने का तरीका है, मान लीजिए IIFL ने आपको बोला फ्यूचर्स बाय करा जा सकता है, एक काम करिए, फ्यूचर्स का प्राइस देखिए, कॉल का प्रीमियम देखिए, पुट का प्रीमियम देखिए, अगर पुट का प्रीमियम ज्यादा है, राइट, तो आप फ्यूचर मत करिए, कॉल खरीद के पुट बेचिए, जो एक्स्ट्रा प्रीमियम आया ना, दैट विल हेल्प यू टू राइट, टू रिड्यूस योर कॉस्ट ऑफ बाय, राइट। आप बाय कर रहे हैं ना, फ्यूचर बाय कर रहे हैं, फ्यूचर बाय नहीं करके जब आप कॉल खरीद के पुट बेचेंगे, दैट विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर कॉस्ट ऑफ सिंथेटिक फ्यूचर्स व्हिच यू हैव क्रिएटेड विद द लॉन्ग पोजीशन, राइट। वैसे ही मैं जानता हूं थोड़ा टफ हो रहा है, बट याद रखिए ऑप्शंस धीरे धीरे करेंगे आप, है ना, थोड़ा थोड़े से स्टार्ट करिए, आई एम श्योर आपको बहुत सारा सक्सेस है, बहुत सारा सक्सेस। वैसे ही मैं सेकंड पार्ट भी आपको बताता हूं कि मान लीजिए आपको फ्यूचर शॉर्ट करना है, दिस इज सेकंड एग्जांपल, फ्यूचर शॉर्ट करना है, मत करिए, एक काम करिए, पुट खरीदिए और कॉल बेच दीजिए, पुट खरीदिए और कॉल बेच दीजिए, राइट, बाय पुट सेल कॉल। मगर फिर कब करना है,
कब करना है हमको, राइट? जब कॉल का प्रीमियम पुट की प्रीमियम से ज्यादा हो। बेचने वाला पार्ट दोनों जगह, चाहे लॉन्ग फ्यूचर्स में बोलूं सिंथेटिक में या शॉर्ट फ्यूचर्स बोलूं सिंथेटिक में, राइट? जो बेच रहे हैं ना, अगर उसका प्रीमियम ज्यादा है तो वो हमेशा आपको एक्स्ट्रा माइल ऐड कर देगा प्रॉफिट्स, राइट? तो प्रैक्टिकली आप अगर जाके देखें बहुत सारे बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो ये सब चीजें यूज करते हैं। उनके लिए ये 2 पैसा, 1.5 पैसा, 3 पैसा बहुत माइलेज रखता है, और आपके लिए भी रखेगा, क्योंकि अगर आप इसकी कंपाउंडिंग सोचिए रोज आप अगर ये करें और हर दिन का कुछ भी बचाए, राइट? एक्स्ट्रा 1 पैसा, कभी 2 पैसा, कभी आधा पैसा, राइट? ओके, ऐसा सोचिए 250 टू 255 ट्रेडिंग डेज में कितना सारा सेविंग्स आपका होता है, वो भी कर पाएंगे आप। ऑप्शंस वैसे भी बहुत चीप होता है, राइट? चीप इन द सेंस लुक्रेटिव होता है, एक्सपेंसेस में वो भी आप बचा। सो इट्स एन डबल डबल पर्सपेक्टिव। आप इफेक्टिवली काम करिए, बड़ा काम करिए, छोटे से स्टार्ट करिए, रिस्क समझिए और बिल्कुल उस तरीके से करिए जैसा IIFL सिक्योरिटीज आपको बोल रहा है। या तो खुद रिसर्च करिए और देन डू इट, और अगर आपको नहीं पता है मार्केट डायनेमिक्स, राइट, ओके, तो जैसा रिसर्च रिपोर्ट में आ रहा है वैसा करिए एंड फॉलो एवरीथिंग, फॉलो एंट्री रूल्स, फॉलो स्टॉप लॉस, फॉलो टारगेट लेवल्स, राइट? डू दिस एंड डू दिस रिलीजियसली, राइट? सो इस पूरा स्लाइड का एक सिंपल सा नोट अगर आपको लिखना है आपकी बुक्स में, तो इट इज लाइक सिंथेटिक फ्यूचर कैन बी क्रिएटेड। लॉन्ग फ्यूचर्स कैसे कर सकते हैं? कॉल बाय, पुट सेल, मगर ये मैं तब करूंगा जब पुट का प्रीमियम ज्यादा होगा, राइट? जो भी नजदीक की स्ट्राइक प्राइस है उसके ऊपर। और अगर कॉल का प्रीमियम ज्यादा रहा और अगर मेरे को शॉर्ट फ्यूचर्स करना है, राइट, तो मैं पुट बाय करूंगा, कॉल सेल करूंगा, शॉर्ट फ्यूचर्स हो जाएगा। कब करूंगा? जब कॉल का प्रीमियम ज्यादा, राइट? ओके, चलिए। सो इस तरीके से ये वर्क करता है, ये 2 स्लाइड में मैंने आपको बताया। चलिए, यही चीज जो मैं अभी आपसे डिस्कस किया, आई हैव जस्ट पुट इन शॉर्ट साइड प्रीमियम शुड बी मोर देन कॉल साइड प्रीमियम, राइट? ओके, ये मैं आपको अभी जब जो मैंने बताया, राइट? सिंथेटिक लॉन्ग फ्यूचर्स किस तरीके से करेंगे, शॉर्ट पुट प्रीमियम शुड बी मोर, और सिंथेटिक शॉर्ट फ्यूचर्स शॉर्ट कॉल प्रीमियम शुड बी मोर। और एक बार कुछ दिनों में आपको ये अच्छे से आ जाए, राइट, तो एक काम करिएगा, सेम स्ट्राइक प्राइसिंग, थोड़े आगे का कॉल और थोड़े नीचे का पुट, ऐसे करके देखिएगा। मैं अभी आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, राइट? मैं भी आपसे ये चीज डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ बता देता हूं आपको। इसको बोलते हैं स्प्लिट स्ट्राइक विद सिंथेटिक, स्प्लिट स्ट्राइक्स विद सिंथेटिक। बहुत अच्छा है, एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स बहुत पसंद करते हैं। आप इसके थ्रू फ्लोर सीलिंग बना सकते हैं, ऐसा बहुत सारा चीज साथ में इसको कर सकते हैं, राइट? बट दैट्स अ लेटर स्टेज। आगे बढ़ते हैं। इंक्रीजिंग ऑप्शंस इफेक्टिवली, आप ऑप्शंस को और इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हो, इवन इफ यू आर डायरेक्शनली करेक्ट। आपने बहुत बार देखा होगा कि आप डायरेक्शनली करेक्ट होते हैं, मगर फिर भी आप ऑप्शंस जब करते हैं तो उससे पैसा नहीं आता है। मतलब मान लीजिए आपको लग रहा है ऊपर जाएगा और आपने सिंपल नेकेड कॉल खरीदा है, राइट, ओके, तो भी आपको पैसा नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। या आपको लग रहा है कि एक्सचेंज रेट USD/INR नीचे जाएगा, राइट, आपने पुट खरीदा है और नीचे जाता भी है, राइट, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू मेक मनी आउट ऑफ इट। तो इसके पीछे बहुत सारे चीजें हैं, बट ये एक तरीके की पजल बन गई है जो आपको समझना है, ओके? ऐसे इसलिए होता है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ऑप्शन में हमने ये तो समझ लिया कि वी शुड बाय अ कॉल ऑप्शन व्हेन यू आर एक्सट्रीमली बुलिश, we should buy a put option when we are extremely bearish. But the key to success in option is selecting a right strike price to trade. Selecting a right strike price to trade. अगर आप ऑप्शन बायर हैं, याद रखिए, अगर आप ऑप्शन बाय करके चलते हैं, जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स करते हैं, राइट, ओके, तो उसमें लोग यूजुअली जब बहुत बार ऐसा बात होता है, व्हेन आई टॉक टू लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स एंड ऑल, दे ऑलवेज मेक अ पॉइंट, यार मेरे को लग रहा था
यूएसडी INR एक्सचेंज रेट ऊपर जाएगा, मैंने कॉल ऑप्शन खरीदा बट स्टिल नॉट एबल टू मेक मनी आउट ऑफ, और मुझे लग रहा था मैंने पुट खरीदा नीचे जाने वाला था, नीचे गया भी बट आई एम स्टिल नॉट एबल टू मेक मनी आउट ऑफ। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है बिकॉज हमको ऑप्शन बाय करना समझ में आता है बट सही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना समझ में नहीं आता है। सही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना हमको समझ में नहीं आता है, एंड आई विल गिव यू अ रैशनल बिहाइंड हाउ टू सिलेक्ट अ राइट स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, राइट? याद रखिए ऑप्शन में जीत सिर्फ आपकी तब होगी। और देखिए ऑप्शंस ना ऑप्शंस हैं, याद रखिएगा। आप चाहे बैंक निफ्टी के ऑप्शंस बोले, आप निफ्टी के ऑप्शंस बोले, या एनएससी पे ट्रेड होने वाले गोल्ड मिनी ऑप्शंस की बात करें, मैं रिपीट करता हूं, ऑप्शंस ऑप्शंस है, राइट? फंडामेंटल रूल्स आर सेम। आप ऐसा सोचिए, अगर आपको बैंक निफ्टी फ्यूचर्स क्रिएट करना है तो आप सिंथेटिक फ्यूचर क्रिएट कर सकते हो, ऐसा कोई अलग बात नहीं, सेम है वो। ठीक है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एट दिस पॉइंट इन टाइम इज ऑप्शंस आर ऑप्शंस। आप निफ्टी ऑप्शंस, बैंक निफ्टी ऑप्शन, करेंसी ऑप्शंस लें, या एनएससी गोल्ड मिनी ऑप्शंस भी आप ट्रेड करना चालू कर सकते हैं आईआईएफएल के साथ में। सिर्फ आपको क्या करना है, आप आपके रिलेशनशिप मैनेजर को बोलना है कि मेरे को एनएससी गोल्ड मिनी ऑप्शंस में काम करना शुरू करना है, बहुत अच्छा काम होता है। ठीक है, अब ऑप्शंस ऑप्शंस है, ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से कब और क्यों वो गलत हो जाते हैं, कब और क्यों वो गलत हो जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहली चीज याद रखिए, ऑप्शन बाय सिर्फ और सिर्फ तब करना चाहिए आपको जब आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नजर आ रहा, चाहे अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। देखिए एक मध्यम ट्रेंड, धीरे धीरे ऊपर जाने वाला ट्रेंड या धीरे धीरे नीचे जाने वाला ट्रेंड, ऐसे समय पे आपको कभी भी ऑप्शन बाय नहीं करना है। यू शुड ओनली बाय ऑप्शन, यू शुड ओनली बाय ऑप्शन व्हेन यू आर एबल टू सी अ गुड ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग है ट्रेंड, चाहे ऊपर का ट्रेंड या नहीं, जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तभी ऑप्शन बाय करें। ओके, चलिए ओके, सो पहली चीज, अच्छा ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो ये ऑप्शन बाय करिए, नहीं तो ऑप्शन बाय करना आपको प्रीमियम का नुकसान देके जाएगा। व्हेन यू हैव एक चीट शीट बना लीजिए, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है या नहीं है, राइट? अगर आपको स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लग रहा है, राइट, यूएसडीएनआर आपको लग रहा है ऊपर जाएगा, राइट, और अच्छे से ऊपर जाएगा, बहुत फटाफट ऊपर जाएगा, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग लग रहा है, स्ट्रॉन्ग लग रहा है इस तरीके से, तो ही यू शुड बाय कॉल ऑप्शन। वैसे ही जब नीचे जाएगा तो पुट ऑप्शन करेंगे। अब क्वेश्चन आता है, पहले मैं मंथली ऑप्शंस की बात करता हूं और फिर मैं वीकली ऑप्शंस पे आ जाऊंगा। ओके, तो अगर आप स्टार्ट ऑफ द मंथ पे हैं, स्टार्ट ऑफ द मंथ पे, राइट, और आपको बोला जाता है कि भाई यहां से यूएसडी/INR एक्सचेंज रेट ऊपर आएगा, अच्छा ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रहने वाला है, विद लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड टू हैपन। ओके, सो ऑप्शंस ऑप्शंस है, रूल सेम है हमारा। स्टार्ट ऑफ द मंथ में आप ओटीएम ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हैं, ओटीएम ऑप्शंस आप ट्रेड कर सकते हैं। सो मान लीजिए 75 का एक्सचेंज रेट चल रहा है, आपको आईआईएफएल रिसर्च ने बोला है कि भाई 75 से 75.25 ये हो जाएगा, राइट? ओके, तो ऐसे आपका जो टारगेट है, आपका जो टारगेट है उसका बिल्कुल नजदीक की जो स्ट्राइक प्राइस है, आप उसको यूज कर सकते हैं, आप वो बाय कर सकते हैं। सो ओटीएम ऑप्शन मतलब आउट ऑफ मनी ऑप्शन आप कब खरीद सकते हैं? स्टार्ट ऑफ द मंथ, शुरू के 10 दिन, मैं मंथली ऑप्शन की पहले बात कर रहा हूं, शुरू के जो 10 दिन है तब आप ओटीएम ऑप्शन बाय कर सकते हैं। जो भी आपका टारगेट है, राइट, उसके एकदम नजदीक का ऑप्शन आप बाय करके चलिए अगर स्टार्ट ऑफ द मंथ। बट आप अगर महीने के मध्य में है, मतलब जैसे 10 तारीख बीत चुका है, 11 से 20 तारीख के बीच में है, 11 से 20 तारीख के बीच में, तो इस समय पे कभी भी अगर कोई आपको बोले कि 75 का रेट है, 75.25 हो जाएगा, 75.20 हो जाएगा, एक काम करिए, आप ऐसे समय में मतलब महीने के मध्य में, मिड ऑफ द मंथ, राइट, आप एटीएम, राइट, या ATM+1 में डील करेंगे। ATM+1 मैंने इसलिए लिखा हुआ है, कभी कभी कैसा होता है 75.20 का रेट चल रहा है और आपकी स्ट्राइक प्राइस 75.25 हो जाएगी, तो हम लोग बोलते हैं एटीएम 1 स्टेप ऊपर चला गया है, इस हिसाब से। तो याद रखिए महीने के मध्य में आप हमेशा एटीएम ट्रेड करेंगे,
10 तारीख से 20 तारीख के बीच में। और ये सब मैं आपको ऐसा मन से नहीं बोल रहा हूँ, देयर आर रैशनल बिहाइंड्स। अगर आप ग्रीक समझते हैं तो आपको पता चलेगा राइट, आपको पता चलेगा कि कितने सारी चीजें साथ में इसमें वर्क करें। और वैसे ही जब आप आखिरी हफ्ते में आ गए, 27-28 तारीख, 27 तारीख की एक्सपायरी है, सो 21 तारीख से 27 तारीख के दिन सिर्फ एक स्टेप इन द मनी करके आप ट्रेड करें। ऑप्शन बायर के लिए बोल रहा हूं मैं, एक स्टेप इन द मनी करके ट्रेड करें। आपको लग रहा है ऊपर जाएगा, आप एक स्टेप इन द मनी जाए और फिर ट्रेड करें, देखिए आपके प्रॉफिट्स ना सब्सटेंशियली बढ़ने शुरू हो जाए। तो 3 चीज मैंने आपको बताई, ये ऑप्शन बायर के लिए है। पहली चीज, महीने की शुरुआत में आप ओटीएम ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं। कैसे ट्रेड सिलेक्ट करेंगे, आपका जो भी टारगेट है वो उसके एकदम नजदीक की स्ट्राइक प्राइस आपको बाय करके चल सकते हैं। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, महीने के मध्य में आपको एट द मनी ऑप्शंस यूज करने चाहिए, राइट। और महीने के अंत में, राइट, जब आपका आखिरी हफ्ता, आखिरी 8-10 दिन चल रहे हैं, ओके, तब आपको एक स्टेप इन द मनी, ज्यादा अंदर नहीं जाना है, एक स्टेप इन द मनी यूज करके चाहिए। मार्क माय वर्ड्स, आपकी इफिशिएंसी ना नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। हमको बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि सर मैंने आखिरी दिन वो आधा पैसे का ऑप्शन बाय किया और यूएसडी एक्सचेंज रेट ऊपर भी गया बट मेरा भाव ऊपर ही नहीं गया। ऐसा इसलिए क्योंकि उनने गलत स्ट्राइक प्राइस बाय की। वो आखिरी दिन ओटीएम ऑप्शन बाय कर, और या फिर आखिरी दिन एटीएम ऑप्शन बाय करेगा तो गल ही जाएगा। तो आप एक स्टेप या आखिरी के 2 दिन पहले वो एटीएम ऑप्शन बाय कर रहा है, नहीं, आखिरी में आपको एक स्टेप इन द मनी, मतलब कॉल में छोटी स्ट्राइक प्राइस, पुट में बड़ी स्ट्राइक प्राइस, सिर्फ एक स्टेप अंदर आप काम करके देखिए। डायरेक्शनल काम, ऑप्शन बायर वैसे भी डायरेक्शनल होकर ही काम करता है। मार्क माय वर्ड्स, आपका जो पर्सपेक्टिव है ऑप्शंस का वो बिल्कुल चेंज हो जाए। आपका ऑप्शन का जो पर्सपेक्टिव है ये पूरा का पूरा चेंज हो जाए और बहुत ही अच्छे वे में आपको ऑप्शन समझ में आता है। सो आपको डायरेक्शन पता है, उसके साथ में सही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करिए, यू विल बी एट नेक्स्ट लेवल। ओके, मैंने क्या किया, मैंने 30 दिन का एक महीना लिया, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले के 10 दिन, मध्य के 10 दिन और आखिरी, राइट। ओके, पहले के 10 दिन ओटीएम ऑप्शन, बीच के 10 दिन एटीएम ऑप्शन, आखिरी के दिन आखिरी के कुछ दिन जो है हमारे 6-7-8 दिन जो भी बचे हुए हैं, राइट, उसमें 1 स्टेप इन द मनी। अब अगर इसी को वीकली में चेंज करना है, राइट, आई हैव 7 days, फर्स्ट 2 days ओटीएम ऑप्शंस, राइट, मिड 2 days एटीएम ऑप्शन, लास्ट 2 days इन द मनी ऑप्शंस, बस, राइट। ओके, यूज दिस, मार्क माय वर्ड्स, एज एन ऑप्शन बायर। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस इस तरीके से करेंगे। आई एम श्योर दिस विल बी लॉट ऑफ वैल्यू एडिटिव फॉर ऑल ऑफ यू व्हेन यू डू द प्रैक्टिकल ट्रेडिंग। ओके, सॉरी, इसके अलावा कुछ बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजीज जो हम लोग बताते हैं, याद रखिए, एक बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए जो ऑप्शंस में जब वो शॉर्ट करते हैं तो उसका रिस्क समझते हैं। आप रिस्क समझिए, स्टॉप लॉस लगा के काम करिए। तो शॉर्ट स्ट्रेडल, शॉर्ट स्ट्रेंगल्स बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। शॉर्ट स्ट्रेडल का मतलब होता है जो भाव चल रहा है उसका बिल्कुल नजदीक, जो सबसे नजदीक की स्ट्राइक प्राइस है, सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट दोनों बेच दिया। मगर शॉर्ट स्ट्रेडल थोड़ा सा डेंजरस ज्यादा हो जाता है, बिकॉज अगर जैसा अभी आपने देखा होगा करेंसी में बहुत सारा मूवमेंट आ गया था फटाफट, सो ऐसे समय पे थोड़ा डेंजरस हो जाता है। काफी अच्छा जो चीज है वो है शॉर्ट स्ट्रेंगल्स। शॉर्ट स्ट्रेंगल मतलब थोड़े ओटीएम ऑप्शंस और दूरी के ओटीएम ऑप्शन, स्ट्रेंगल की मैं बात कर रहा हूं, वो आप बेचिए, राइट। और इसमें थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट करते रहिए। अगर आपको प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो आपको स्ट्राइक प्राइस ऊपर करनी पड़ेगी, नीचे करनी पड़ेगी, कभी कभी स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ेगा, राइट। सिर्फ याद रखिए आपको सही समय पे सही स्ट्राइक प्राइस चेंज करने की के बारे में पता होना चाहिए। अब इसमें बहुत सारी थ्योरीज है, आज उतना समय नहीं है तो मैं उतना ज्यादा बात उस पर नहीं करूंगा, बट याद रखिए दूर के ऑप्शंस बेचे, जब आप बेचते हैं शॉर्ट करते हैं, कॉल भी बेचते हैं, पुट भी बेचते हैं, तो हम लोग इसको थियोरेटिकली बोलते हैं शॉर्ट स्ट्रेंगल। बट इसमें शॉर्ट स्ट्रेंगल में लोग फंसते कब है, जब एक साइड मूवमेंट आता है। तो आपको पता होना चाहिए मेरे को इसमें एडजस्टमेंट का मतलब होता है मैं स्ट्राइक प्राइस कैसे चेंज करूं या क्वांटिटीज एक साइड पे थोड़ी इंक्रीज कर लूं सो दैट मेरे लॉसेस टेम्परेरी बेसिस पे कम होने लग जाए, राइट। स्ट्राइक प्राइस ऊपर ले जाऊं, स्ट्राइक प्राइस नीचे ले जाऊं, या क्वांटिटीज थोड़ी सी एडजस्ट कर लूं, राइट, उस अकॉर्डिंग। तो शॉर्ट स्ट्रेंगल भी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होती है। और जब से वीकली ऑप्शंस आए हैं, राइट, वीकली ऑप्शंस आए हैं,
ये बहुत अच्छे से काम करे. So mark my words, friends, everyone, use वीकली ऑप्शंस. करेंसी तो वैसे भी कम वॉलेटाइल प्रोडक्ट है, तो आपको बहुत ज्यादा ऐसा मूवमेंट्स हर दिन, हर महीने, हर रोज ऐसा नहीं मिलेगा. सो शॉर्ट स्ट्रेंगल्स विथ एडजस्टमेंट्स बहुत अच्छे वर्क करते हैं. इसके अलावा बुल स्प्रेड, बेयर स्प्रेड, ये दो बहुत पॉपुलर स्ट्रेटेजीज हैं. अगर आप बुलिश हैं तो आप एट द मनी खरीद के आउट ऑफ मनी बेच दीजिए. अगर आप बेरिश हैं तो एट द मनी का पुट खरीद लीजिए और आउट ऑफ मनी का पुट बेच दीजिए. राइट, स्प्रेड कर लीजिए, मतलब आप दो पोजीशन बनाएंगे और दो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर पोजीशन आप बनाएंगे. तो इस तरीके से अगर आप एडजस्टमेंट्स करेंगे स्ट्रैंगल में, स्प्रेड्स बना के चलेंगे, सही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे एज एन ऑप्शन बायर फॉर नेकेड ऑप्शंस बाय, राइट, सिंथेटिक करेंगे, तो आई एम श्योर आपको बहुत सारा नया चीज समझने को मिलेगा ऑप्शंस का. ऑप्शंस इतनी सारी स्ट्राइक प्राइस, इतनी सारी कॉन्सेप्ट्स के साथ में है, राइट. सो याद रखिए, इसको धीरे धीरे करिए, थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी के साथ स्टार्ट करिए. क्वांटिटी इंक्रीज करना इज नॉट एट ऑल अ बिग डील, क्योंकि क्वांटिटी इंक्रीज करने में सिर्फ आपको पीछे जीरोस बढ़ाने हैं, राइट. ओके, सो बट पहले अच्छे से करिए, एक एक स्टेप लीजिए कि नहीं अभी मैं सिंथेटिक करने की कोशिश करूंगा, राइट. मैं फ्यूचर बाय नहीं करके ऑप्शंस में ट्रेड करूंगा. कॉल खरीद लिया, पुट बेच दिया, मगर ये कब करूंगा? जब पुट का प्रीमियम महंगा हो कॉल के कंपैरिजन. मैं शॉर्ट कब करूंगा? जब कॉल का प्रीमियम महंगा. तो पहले इस पे थोड़ा सा कमांड लाइए. फिर जब आप डायरेक्शनल बाय करके चल रहे हैं ऑप्शंस, तो उसमें एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ मनी कब कब करना है, जैसा मैंने आपको बताया, आप उसको यूज करिए, राइट. स्ट्रैंगल्स करिए, स्ट्रैडल्स करिए, ऐसे धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ेंगे तो मार्केट ऑटोमेटिकली टीचेस ओवर पीरियड ऑफ टाइम. फ्रॉम द पॉइंट आई स्टार्टेड, दैट मार्केट में आप जब तक जितने लंबे समय तक रहते हैं ना, राइट, मार्केट खुद ब खुद बहुत सारी चीजें सिखाता है आपको. So that is basically a great learning for everyone. Even every day we also learn, right? I also learn. My colleagues at NSE, we keep learning every day from markets itself. My friends at IIFL Securities research team, Devesh bhai and everyone, we keep learning every day, right? So इस तरीके से आगे बढ़ी. I'm sure a lot of things can be done in currency options per se. So that's it from my side. In case if there are any questions, I'm happy to answer them. Thank you, Hitesh sir, for your wonderful presentation, making us understand each and every concept very clear. When to go for option strategy, start of the month, middle of the month, and the end of the expiry. Thanks a lot for your wonderful